Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीर्येत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजो श्री जीव गोपालक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो मैं जस्ट शेयर करता हूँ, जस्ट ए मिनट। ओके, तो हम लोग जैसा हमेशा करते हैं, हम लोग रिकैप से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीक हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था, शेयर कर देता हूँ, श्लोका नंबर 38 Prabhuji, 38 and 39 we did, yeah. 38 and 39, yeah. So 38, would you like to share something, Veji Mataji, what we have seen last? Okay, I made a few notes. I'll just share on that basis. I think in 38, what Lord Krishna is telling Arjuna is, by fighting without thinking about happiness, sadness, victory, or defeat, you do not incur sin. And for those who are, in the spiritual, world, there are no difficulties. I think here the Lord is actually trying to talk about, being equipoised and nishkama, doing things without, desire or without, fruitive results. And then, we started with 2.39, where the Lord is talking about the Sankhya Yogam or the Sankhya philosophy. So the main crux of this is when we work without fruitive results, then we can free ourselves from all kinds of bondage. Because in this world, for everything, we're actually taking it from somebody and we are indebted to somebody. But by complete surrender, the concept of which is given in Srimad Bhagavatam, about surrender in 11.5.41, then there is no indebtedness to anybody, be it the demigods or the Yeah, rishis or any other living entities or our forefathers. I think you also made a distinction between the Sankhya philosophy that's being given by Kapila Muni, the one Kapila yeah, who's an atheist. And I think you said that we should not follow that, because here yeah, the Buddhi Yoga or the Sankhya thing is given in detail by the Lord. yeah, yeah. Hare Thank Krishna. you, Mataji. Very wonderfully, you have summarized the whole class, Thank you. what you've done last week. Thank you, So Prabhuji. thank you for that. Thank you for making these wonderful points, which makes easy to recap and go through and study our subject. So thanks for that, Mataji. So we'll start from shloka number 40. Actually, shloka number 40 is very important and very nice. So I didn't wanted to do it in a hurry. So I have not taken last
last time, so we'll take it up this week. Shloka number 40. I think you can see the shloka, the screen. Yes, Prabhuji. Yeah, I will read and then you can repeat. Neha bhikramana asti Neha Bikramanaşosti pratyavayo na vidyate Pratyavayo na vidyate swalpam apyasya dharmasya Svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Trayate mahato bhayat. So we'll take a translation and purport by Divine Sasi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. So here what Lord is saying is, in this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. तो what Lord is saying here, भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस मार्ग पर there is no loss on walking on this path. Somebody might think, okay, I should do this or I should not do this, because generally लोग क्या सोचते हैं कि once we start the work, it has to be finished, it has to be completed, then only there is success. If not, it's just a waste of time. Like if we take example, अगर एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, building of a house. A building is very nicely, the structure is built, everything is done, but even if the simple interiors or the finishing, the painting is not done, it is incomplete. So nobody would like to stay in such a house. So the whole point is until and unless one has reached the end of that work, it is incomplete. He will not be successful. So somebody might think कि this bhakti yoga में अगर हम लोग चल रहे हैं या भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, तो is it okay, or I should do some tapa, I should do some other type of japa, ऐसा कुछ मुझे करना चाहिए, मुझे something other than this. So what Lord is saying here, कि even if you walk and if you are not able to complete, there is no loss in it. You are not going to lose anything. And on the top of that, भगवान ये बोल रहे हैं कि even a little advancement will protect you from dangerous type of fear. So just a minute. Yeah. So भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप अगर कंप्लीट भी नहीं भी करते हो अपना उस मार्ग पे, आप नहीं भी पहुंच पाते हो, एंड आपने थोड़ा सा, मतलब इवन हार्डली समझो 10% you have got success, and then if you stop doing it, still there is no loss in it. And that little advancement, that 10%, whatever advancement you have done, will save you from greatest danger, greatest fear. Trayate mahato bhayat. So it is going to protect from the dangerous type of fear. So there are many examples in the Shastras we see that people were devotees were not able to complete, वो पूरा नहीं कर पाए और उनका पतन हो गया, और still they were successful later on. So if you see, the best example is Maharaj Bharat. So I'm sure most of you must be knowing about Maharaj Bharat, but still I will repeat. महाराज भरत जो थे वो एक काफी अच्छे
सारे पृथ्वी के, नॉट ओनली इंडिया और ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द प्लेनेट बट होल प्लेनेट, इट वाज अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन। उनके सारे पृथ्वी के सम्राट थे वो। एंड ही वाज सच ए ग्रेट डिवोटी कि उन्होंने सोचा कि मुझे सब छोड़ के मुझे भक्ति में लगना चाहिए। सो ही वाज वेरी मच डिवोशनल। तो उन्हें सब कुछ छोड़ दिया, भक्ति में चले गए। और कहा गया है शास्त्रों में कि भागवतम में कि ही हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ, ही हैड अ वेरी गुड सन, एंड द होल there was so much opulence of the whole earth for him to enjoy, but still वो सब छोड़ के, उनका इतना आकर्षण था भक्ति की तरफ, सब छोड़ के उन्होंने बोला कि नहीं मुझे भक्ति करना, और वो जंगल में चले गए। और इतना सब ऐश्वर्य छोड़ के वो जंगल में एक भिक्षु की तरह रहने लगे, और वो अपना तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, सब जप कर रहे थे, एवरीथिंग वाज डूइंग। बट सडनली दिस इज अ पास्ट टाइम, भगवान का ही एक लीला है कि एक वो हिरन से आकर्षित हो जाते हैं। एक बार वो देखते हैं कि एक जो गर्भवती जो हिरन है, डियर वाज प्रेग्नेंट, शी केम वेयर शी वाज ड्रिंकिंग वाटर। सडनली एक वहाँ पे जो है एक शेर आ जाता है, और वो शेर को देख के वो, शी वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो वो डर के मारे वो वहीं पे उसको डिलीवरी कर देती है और वो भाग जाती है वहाँ से। तो ये जो छोटा सा बच्चा जो था, बेबी डियर, तो वो सोचते हैं अभी इसको कौन देखेगा, इसको कौन संभालेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा, हु विल प्रोटेक्ट इट। कोई कुत्ता आके इसको खा लेगा, कोई शेर आके खा लेगा। तो ही बिकेम ओवर प्रोटेक्टिव, और वो उसको संभालने लगते हैं। और धीरे 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 हम लोग देख सकते हैं लाइफ में जो मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, है ना, भौतिक आसक्ति कैसे हमारे जीवन में कहाँ से घुस जाएगी हमको पता नहीं। तो वो इतने बड़े सम्राट, और चक्रवर्ती सम्राट थे पृथ्वी के, वो सब छोड़ के वो भक्ति करने के लिए जंगल में आए। वो सब छोड़ के वो अब उस हिरन के पीछे लग गए। वॉट एवर नेम ही मस्ट हैव केप्ट ऑफ दैट डियर, सो ही मस्ट बी ऑलवेज, उसको हमेशा पुकारते रहते थे, अरे कहाँ चला गया, अरे कुछ खाया कि नहीं कुछ। तो भक्ति छोड़ के वो उसके पीछे रहे। मतलब इतना था कि वो अपना जो रिचुअल्स था उनका, जो पूजा जप तप पाठ वाठ सब छोड़ के वो उसके पीछे लग गए। एंड हुआ ये कि वो एक बार शाम का समय था, अंधेरा हो गया था, और वो मिल नहीं रहा था बच्चा। तो बोला अरे इसको कोई खा लेगा, क्या होगा, कौन इसकी रक्षा करेगा। तो उसका आवाज लगाते हुए ढूंढते हुए जा रहे थे। और क्या हुआ कि वो एक पहाड़, एक क्लिफ के एंड पे आ गए, और वहां से पुकारते पुकारते वो वहां से गिर गए। और जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अंत समय में जो याद करके जो देह त्यागेगा उसको वही प्राप्त होगा। तो भारत महाराज को भी यही हो गया। वो अंत समय में वो हिरण का स्मरण कर रहे थे, हिरण के बारे में सोच रहे थे, और उस समय उनका मृत्यु हो गया। तो उनको तुरंत जो था, उनको एक हिरण का शरीर मिल गया। तभी उनको जब शरीर में आए तो भागवतम में लिखा गया है कि ही वॉज सच ए डिवोशनल पर्सन कि इवन इन दैट बॉडी ऑफ डियर, उस हिरण के शरीर में भी उनको याद था कि मैं महाराज था, मैं भक्ति करने के लिए आया था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा सब कुछ छूट गया। नाउ आई डोंट वांट एनीथिंग, I will do my, and in that body of deer also he used to do remembering of Krishna and whatever possible he used to do. And even ये भी कहते हैं कि he, like other animals, they'll eat fresh leaves. तो he was so much detached, वो fresh leaves भी नहीं खाते थे, जो नीचे पड़े हुए सूखे पत्ते थे जानबूझ के वो खाते थे। बोले कि I don't want to even, I want to be renounced. एंड आफ्टर दैट वो जब बॉडी छोड़ा उन्होंने, तो अगेन ही गॉट बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, और उनको एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। और वहाँ पे भी उनको याद था कि मैं महाराज था, महाराज से मैं एक हिरण बन गया, और हिरण से नाउ आई एम इन दिस सिचुएशन कि आई एम टेकन बर्थ अगेन इन दिस हाउस ऑफ ए ब्राह्मण। वो जानबूझ के वो डम, एकदम ऐसा बुद्धू की तरह वो बिहेव करते थे। कोई उनको बुलाता था तो वो यहाँ वहाँ देखते थे कौन, और कोई उनको बोलता था आगे आओ तो पीछे जाते थे, कोई बोलते थे वहां पे चले जाओ तो आगे आते थे। तो पर्पसली वो एक मंद बुद्धि की तरह वो काम किया करते थे, क्योंकि जानते हैं कि अगर
कोई समझ जाएगा कि ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, तो जबरदस्ती फिर उनका शादी कर देंगे या उनको कोई काम में लगा देंगे। ही डिडंट वांटेड, तो वो अपना बस एकांत में बैठ के भजन करते थे। एंड देन ही वाज सो मच लाइक ना, भगवान का इतना भक्ति करते थे कि एक बार कुछ डाकू लोग जो है वो उनका क्या बोलते हैं उसको, बलि, उनका सैक्रिफाइस देने वाले थे और वो तलवार लेके उसको काटने ही वाले थे। एंड भरत महाराज ही वाज सो डिटैच्ड, भगवान का इच्छा है तो कुछ नहीं होगा, नोबडी इज गोइंग टू किल मी, एंड अगर भगवान का इच्छा है तो कोई बचा भी नहीं सकता। सो ही लेफ्ट इट एंड ही वाज जस्ट रिमेम्बरिंग ऑफ लॉर्ड। तो दैट वाज सीन बाय काली, दिस, ये जो डाकू लोग थे ये काली माता के पुजारी थे। तो वो जब काली माता ने देखा, शी गॉट वेरी एंग्री कि भगवान के एक शुद्ध भक्त का ये हाल हो रहा था। शी इमीडिएटली केम आउट ऑफ दैट डेटी, वो मूर्ति में से बाहर आई, उसने वही तलवार जिससे जड़, उनका नाम जड़ भरत था बिकॉज ही वाज एक्टिंग लाइक ए जड़ बुद्धि, सो जड़ भरत, तो जिससे वो जड़ भरत को मारने वाले थे, वही तलवार लेके उन सारे जो डाकू लोग थे, वो पूरा जो ग्रुप था सबका उसने गला काट दिया। तो वी कैन सी कि कैसे महाराज भरत से हिरण बने और हिरण से फिर वो उनको जड़ भरत माना जाए। तो वो जो भक्ति उन्होंने जो किया था एज महाराज भरत, ही कुडंट कंप्लीट, एंड वो बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीशन ऐसा नहीं हुआ कि ही लॉस्ट। अगर हम लोग देखें आज मेरे पास मैंने पीएचडी किया है या मेरे पास पूरा ऐश्वर्य है, मेरे पास बैंक में, स्विस बैंक में अकाउंट है, करोड़ों रुपया है, सब कुछ है, एवरीथिंग है, बट इफ आई डाई आई हैव टू लीव एवरीथिंग। इवन मैंने दूसरा जन्म लिया, आई रिमेम्बर, अरे मेरा बैंक का अकाउंट नंबर ये है, उसका पासवर्ड ये है, सब कुछ पता है, स्विस बैंक का अकाउंट पता है, मैं जाके बोलो कि ये फलाना जो अकाउंट है ये मेरा है, तो व्हाट दैट सिक्योरिटी गार्ड्स विल डू, दे इमीडिएटली थ्रो यू आउट, बोले कौन ढोंगी आ गया है करके। सो वी हैव टू लिव, एंड इवन इफ यू रिमेम्बर यू कैन नॉट ओन इट। So that is the problem in material acquisitions. Material acquisitions are left. लेकिन भक्ति is always with us. It can never be diminished. तो यही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि on this path there is no loss और there is no diminution. ऐसा नहीं है कि कुछ आपका नुकसान हो जाएगा, आप इस पथ पे चलेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, या कुछ जो आपका जो धन संचय किया है भगवान के नाम का वो कम हो जाएगा। नो, अगर आपने 10% किया तो वो 10% आपका रहेगा, आपने छोड़ा, नेक्स्ट लाइफ लिया, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 11, इट विल नॉट बिकम 0। बट मटेरियल ऐसा नहीं है, आपने पढ़ाई भी किया है, यूर पीएचडी, एंड इफ यू टेक रीबर्थ अगेन यू हैव टू लर्न ABCD, so again it has to start. So that's what that's the point what Lord Krishna is making here. There is no loss or diminution, and that will protect us from greatest type of fear. So what is that fear? यहाँ पे भगवान किस fear के बारे में बात कह रहे हैं? तो some people say it is death or something like that, but it is not death, because if we see, we have seen earlier in second chapter 13th shloka, बोलते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। So from Kumar Avastha you will become Yavanam, and Yavanam you will become to old age, and old age, after old age you are going to leave this body. And also we have seen one more shloka, what is that? Jatasya hi dhruvor mrityu dhruvam janma mrutasya cha. One who has taken birth is sure to die, and one who has died is sure to take birth. So mrityu is a package, like no, it's a complete package. You cannot avoid that. जिसने जन्म लिया है तो वो मृत्यु भी ऑलरेडी उसका फिक्स्ड है। सो भगवान यहाँ पे मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा। दैट इज नॉट द ग्रेटेस्ट फियर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर? द ग्रेटेस्ट फियर आचार्य लोग बोलते हैं कि इवन आफ्टर कमिंग इनटू ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जन्म लेने के बाद में भी अगर हम लोगों को नीचे की तरफ जाना पड़ा, लोली स्पीशीज जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर या सम नीचे के लोगों में जाना पड़ा, दैट इज
it is a big loss for us, because मनुष्य जन्म जो है, it is so powerful that it can elevate us from जैसे हम लोग जानते हैं 14 प्लैनेट्स हैं, 14 भुवन बोलते हैं, तो बीच में ये हमारा पृथ्वी है, मृत्यु लोग जिसको बोलते हैं, ऊपर 7 प्लैनेट है, नीचे 6 प्लैनेट्स हैं। तो ये नीचे से हम लोगों को ऊपर तक लेके जा सकता है, और ये इस जो टॉप मोस्ट है सबसे, उससे भी अगर बाहर निकल जाएंगे तो वी कैन गो टू वैकुंठा, वी कैन गो टू गोलोका, वृंदावन, whatever wherever we desire. So this human birth is the only opportunity. ये जो मनुष्य जन्म है, यही एक मात्र हमारा चांस है। और ऐसा बोलते हैं कि इवन जो देवता हैं, डेमीगॉड्स, वो भी तरसते हैं कि हम लोग को मनुष्य का जन्म मिले और हम लोग भगवान की भक्ति करें। सो इट इज़ वेरी रेयर, सो वी शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो जो पर्पस जो है इस मनुष्य जन्म का, दैट वी शुड नॉट मिस एट ऑल। एंड हम लोगों को इसको भगवान के भक्ति में हम लोग उसको जरूर लगाना चाहिए हम लोगों को। सो दैट्स द होल पर्पस इन दिस श्लोका। एंड जस्ट अ मिनट, लेट मी सी इफ देयर इज एनी। हाँ, तो इफ वी सी नाउ टिल नाउ श्लोका नंबर 39 तक जो था सांख्य योगा का बात हुआ है। टिल नाउ कृष्णा वाज टॉकिंग अबाउट सांख्य योगा, एंड देन नाउ ही इज टॉकिंग ऑन बुद्धि योगा। सो बुद्धि योगा यहाँ पे जो है अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग, या दैट्स इट। तो ये है हमारा श्लोका नंबर 40, वेर इट जो मनुष्य जन्म का या भक्ति योग का, भगवान की भक्ति का क्या इम्पोर्टेंस है, वो पूरा स्ट्रेस यहाँ पे भगवान कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं श्लोका नंबर 41। ओके, श्लोका नंबर 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिर व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनन्ताश्च बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। Okay, it's a translation and purport by His Highness Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of Purush, the intelligence of those who are irresolute is many branched. तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो लोग इस मार्ग पे हैं भक्ति में, उनका जो say the focus is on one, their aim is one, and whose aim the others, he's talking, Lord Krishna is talking of two type of people, one who are focused and other is saying who are not focused. Their intelligence is irresolute, they are not focused, and is their intelligence is many branch. So once there is one person who is focused, so he has only one goal and he will work on that. But we can take an example. हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है जिसको पूरा फोकस है कि मुझे समझो बॉम्बे से पुणे जाना है, तो he will focus on that and he will keep going towards on that direction.
and he will keep working on that. His speed may be slow. Either he may go by plane, he may go by train, he may go by road or anything. But he is focused. I have to go to the destination. But there is other person. He may be having the fastest plane, or he may be having the fastest car like Lamborghini or some Ferrari, but he doesn't know where to go. कभी वो सोचता है मुझे गोवा जाना है, he suddenly starts going. Half the way he thinks, oh, गोवा से तो अच्छा है मैं यहाँ महाबलेश्वर चले जाता हूँ, and then he start towards going again महाबलेश्वर. फिर महाबलेश्वर से यार अरे नहीं नहीं यार मुझे दिल्ली जाना है, and then he start going Delhi. So such a person, even if he is having the best equipment or the best tool, he cannot reach his destination because his focus is many branched. He doesn't have any single focus. तो यहाँ पे भगवान जो है focus की बात कर रहे हैं. The intelligence should be focused and resolute. So if we see in previous shloka, Lord was talking of a slightest endeavor. Even if a slight endeavor will protect you from greatest danger, and now he's talking of if you are walking on that path, you need to have focus. That focus is required, and he's insisting on that. तो प्रभुपाद, if we see प्रभुपाद जी का purport अगर हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद जी का purport देखते हैं, तो प्रभुपाद is connecting that verse. This verse is saying a strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavasayatmika Buddhi. So he's giving definition of resolute intelligence or Vyavasayatmika Buddhi he's giving. So what he's saying, he's giving one shloka from Chaitanya Charitamrita. श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे तो दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय. So here it is said that that having a full faith, if I do Krishna bhakti, everything is done. So that focus or that kind of strong faith, shraddha, is called as Vyavasayatmika Buddhi. So this is very important. I don't need to do any other thing. जैसे कभी कभी होता है कि भगवान का भक्ति करना है मुझे, ओके, देन सडनली ओके मुझे अच्छा हेल्थ नहीं है तो मुझे सूर्य का पूजा करना है, ओके मुझे थोड़ा सा लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी का पूजा करना है, एंड he gets diverted. But if you do only Krishna bhakti, all the results are automatically achieved. And ये हम लोगों ने I think पहले भी देखा था. Where there is one very nice shloka in Srimad Bhagavatam which says यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति यत् छंद भुजोपशाखम. So there Bhagavatam gives an example of a tree. और एक पौधे का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम लोगों को उस पौधे को पानी देना है तो ऐसा नहीं हम लोग एक एक पत्ते में, एक एक ब्रांचेस में, एक एक उसके ट्रंक में, नहीं, we give only to root, and if the water is given to the root, automatically the water is given to the whole body. Similarly हम लोग खाना भी खाना है तो मेरा आँख कमजोर है, ऐसा नहीं थोड़ा सा दाल लेके आँख में डाल दिया, मुझे सुनाई नहीं देता तो थोड़ा सा चपाती मैंने कान में डाल दिया. नो, डोंट डू दैट. हम लोग क्या करते हैं, खाना हम लोग खाते हैं, and that vitamins or that whole energy is distributed throughout the body. So same thing is there. Even if you do Krishna bhakti, so automatically Bhagavatam says all the other देवतास they are satisfied. ऐसा नहीं कि वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, अरे मेरा पूजा नहीं किया, इसका किया. हाँ, अगर दूसरे देवता को करते हैं, 33 करोड़ डेमिगॉड्स, तो एक का किया तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा, दूसरे का किया तो तीसरा गुस्सा हो जाएगा, तीसरे का किया तो किस का पूजा करेंगे हम लोग और कैसे करेंगे, 33 करोड़. सो दैट्स व्हाई जस्ट एक रूट पे हम लोग अगर पानी डाल देते हैं तो एवरीथिंग दैट इज सेटिस्फाइड, and they all will be happy and they will bless you. So that is what Prabhupada is connecting in this
कनेक्शन व्यवसायत्मक बुद्धि की कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय. Only by doing Krishna bhakti, automatically everything is done. That strong faith is required, and then you have that focus, that strong faith. Then automatically you will achieve your goal. This is one thing, and how you will achieve that, because and the Shastra it is said, Vasudev in Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Vasudev Sarvamiti Sa Mahatma Sudirlabha. Vasudeva Sarvam. Vasudev is everything. Who is Vasudev? We know, father of Krishna, and Vasudev is Lord Krishna. Because he is son of Vasudev, he is called as Vasudev. Like son of Pritha is called as Partha, Arjuna. So Vasudev Sarvamiti, the son of Vasudev, he is everything. So one who knows this, स महात्मा सुदुर्लभ. ऐसा जो व्यक्ति है वो महात्मा है. तो नॉर्मली जो है महात्मा यानी हम लोग किसी को डेजिग्नेशन दे देते हैं, अरे ये महात्मा है या वो महात्मा है. भगवद गीता से क्लियरली नो. One who knows Vasudev Sarvamiti. Vasudev is everything. He is Mahatma, and his Lord is saying is Sudurlabha. Durlabha means very difficult to find, and Sudurlabha means very, very difficult to find. So when you have that kind of faith, then only you will be able to achieve that focus. And yeah, that strong faith, that firm faith is absolutely required, and then you will achieve that focus, and with that focus you can progress in your Krishna bhakti, Krishna consciousness. Okay, I have lot of stuff, so I have problem in talking, so I think I will stop here, and quickly we'll take some questions. If somebody has any questions or doubts, we can take. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, thanks for very interesting class and very interesting examples also. I had one question. So Bharata Maharaj ka or Jad Baradar ka, the Leela, the story. Which part of Bhagavatam is it in? Which verse, which chapter? Can you share that, please? That is, if you see, Jad Bharat Maharaj comes in, I think, 5th canto. Okay. It comes in 4th canto or 5th canto. Okay. I'm not sure. I will check and I will let you know, Mataji. Sure, Prabhuji. Because I'm just Bharat trying Maharaj, to, wherever, to connect it if possible and noting it down. So, if I'm not wrong, it is 5th canto, but I will okay. let you know, Mataji. Okay. I'll give you exact details on that. Okay. It is in which canto. Okay. And it's very interesting part, Mataji. I just wanted to share that. Actually, if you go into the Charitra of Jad Bharata or Bharat Maharaj, it is so wonderful. And there are so many chapters. And I heard one of the lectures of Radha Govind Maharaj. Radha Govind Maharaj says that there is so much detailed explanation on that just only one character, Jad Bharat Maharaj. There, I think, almost he says there are 18 chapters describing the life of Jad Bharat. It's very long and very elaborate and very detailed. So it's very interesting. I just, I'll say, I've given a not even a trailer, no, not even a small glimpse of it. Hare Krishna. Hare Krishna. See, it's very, so this 2.40 actually, is very interesting because at least whatever we do, it is of some value, in this path. That is very, good to know that, it is like a, but equally scary, because I want to know more about, Bharata Maharaj, because it looks like he was like such an elevated soul and he's been doing so much, but even for him, it took him so many janmas, 3 janmas at least, right, that we know of to reach. So whatever we are doing is like so little, fraction
So that kind of, is a little bit worrisome, in the sense, that although we are in the path, it is, good to be in the spiritual path, but a long, long way to go. So, we just have to increase our daily spiritual activities. That's the message that I'm getting. Yeah. I would tell you, I've just seen it is in 5th canto, Okay. chapter number. It starts from 7. Okay. From chapter number 7, he starts giving description of Bharat Maharaj. Then he starts Okay. talking of Bharat, the character. There is one chapter giving only activities of Bharat Maharaj. Then the next chapter is only talking of the character of Bharat Maharaj. And then in the next chapter he comes, starts talking about Jad Bharat Maharaj. Okay. So it's a very long. If you see from chapter number 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Wow. 15, 14, yeah, till 14, chapter number 14. So Okay. right from 7 to 14, almost 7 chapters, you can say. It's only on one personality. I think this is the longest covered personality. And as you said very rightly, Mataji, it's giving some solace. Okay, जो थोड़ा भी कर रहे हैं, तो it is useful, but also it gives a fear. Like Bharat Maharaj, even if he has done so much thing, still he couldn't achieve. So how can I am going to achieve it? So if you see, actually, Lord is trying to give a message here, which is, I can say, it is not so easy, and it is very easy also. And you can say we should, like his Lord is trying to give focus. Like, no, you should not. This should not be even slight distraction. So that deer was a slight distraction, and for that slight distraction, this whole life has gone. Whole life he has done devotion, and even that slight distraction took him away off the path. So we have, he's asking, Lord is asking us, Bhagavatam is asking us to be very, very careful on this path. Like, no, it's walking on a razor edge. We have to be very careful. If we are not careful, slice immediately. So we have to be careful. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Prabhuji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Ashish Prabhuji, Pooja ji, Anushka. No, Prabhuji, nothing. I think nothing from my side. Just a materialistic thing, and that distraction is very apt, in our normal day-to-day world. And that is where we need to have a strong, determination to not sacrifice our bhakti in any way. So Yeah. that is what I, take that. ये सब तो चलते रहता है materialistic thing, but we should not get distracted. Yeah. And पहले एक chapter में भी पढ़ा था कि if you just focus on Krishna, then everything is automatically taken care of. हमको और किसी भी चीज की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, whether it is अपना life, and whatever, in our life, day to day life. So Yeah, very true, bro. बहुत सही कहा आपने कि difficult है, it is very difficult, but that determination has to be there. कि अगर हम शायद अपने पाथ से वेव भी हो जाए, बट हमको वो समझ आनी चाहिए कि हमको वापस एक यू टर्न लेके उसी जगह पे आ जाना है. हम we cannot get continuously distracted, because ये लाइफ ही हमारा लाइफ ही ऐसा बना है, सोल, इमोशन, सेंटिमेंट्स के वो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं. बट अगर हम कंटिन्यूसली भक्ति करते रहे तो आई थिंक वो हम हमारे सही पाथ पे वापस आ जाएंगे. और बीच में अगर भक्ति छूट गई, देन इट इज गॉन. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डे टू डे लाइफ में सही टाइम निकाल के भक्ति करते रहे. मतलब दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन माय एवरीडे लाइफ के थोड़ा भक्ति हमको करना ही चाहिए. स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अपना स्पिरिचुअलिटी को एलिवेट करना बहुत जरूरी है. बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ एलिवेट हो गया तो बाकी सारी हेल्थ हो, फाइनेंस हो, सब कुछ अपने आप टेकन केयर हो जाए.
या इट्स टेकन केयर, या मतलब स्पिरिचुअल लाइफ भगवान, एलिवेट करने के लिए इट इज वी हैव टू बी कनेक्टेड टू कृष्ण। हम या अपना कनेक्शन उनके साथ छोड़ नहीं सकते। एक दिन भी अगर कनेक्शन छूट गया तो शायद हम भटक सकते हैं, तो वो इट्स अ रिमाइंडर फॉर अस कि हमको वापिस आना है अपने पाथ पे। यू हैव टू स्टे फोकस्ड। वेरी नाइस मैसेज यू हैव टेकन आशीष प्रभु। और यह होता है कि कभी कभी हम लोग भटक जाते हैं, जैसे महाराज भरत जैसे इतने ग्रेट जो महान भक्त थे, वो भी मतलब स्लाइट डिस्ट्रैक्शन से भटक सकते हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, बट स्टिल मतलब मैसेज हम लोग को यही लेना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को फोकस अपना बनाए रखना है कि नहीं चलो ठीक है, आ गया थोड़ा सा इधर डिविएट हो गए हम लोग, बीच में रास्ते में थोड़ा रुक गए, कुछ नाश्ता पानी किया, कुछ किया, और चलो टाइम हो गया अपना, वी हैव टू गो बैक। हम लोग को अपने रूट पे अपने को चलना है। हम लोग ने आधा घंटा वेस्ट कर दिया, नाउ वी डोंट वांट टू। सो ये बात जब हम लोग को रियलाइज होती है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, दैट इज द पॉइंट विल से इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम लोग को रियलाइज होना चाहिए, हाँ ये जो है मेरा डिस्ट्रैक्शन है, दिस इज वेस्टिंग माय टाइम। तो वो जब हम लोग समझ जाते हैं, इमीडिएटली देन वी गेट बैक ऑन द ट्रैक। सो इट्स अ वेरी नाइस मैसेज आशीष जी, थैंक यू आशीष जी। और वो रियलाइजेशन आने के लिए भी डेली भक्ति जरूरी है, अदरवाइज वो रियलाइजेशन टाइम पे नहीं आता है, टाइम समय चला जाता है और फिर आता है, अरे yes. फिर हम सोचते हैं कि अरे ये हमारा समय गया। तो जैसे काफी लोग सोचते हैं ना, भक्ति करना टाइम तो रिटायरमेंट के बाद ही है, रिटायरमेंट तक तो yes. काम करते रहो, पैसा बनाते रहो, फिर भक्ति करना है हमको, दैट वे। तो वो तो छोड़ो, अभी रिटायरमेंट का भी जो है, लोग 58 में रिटायर होते थे, अभी वो और 5 साल एक्सटेंशन लेते हैं, हाँ, उसके बाद में फिर और 5 साल एक्सटेंशन लेते हैं, फिर बाद में जब तक वो भक्ति करने के लायक ही नहीं रहते, जब रिटायरमेंट हो जाता है वो, दे आर जस्ट ऑन बेड। सो वो नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू आशीष प्रभु जी। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि नो नीड टू फियर, हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। बस एक ये है, जैसे भगवान आज के इसमें दे रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी एडवांसमेंट किया तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है हम लोग। बट इससे हम लोग को ये मैसेज नहीं लेना चाहिए, चलो ठीक है मैं डिस्ट्रैक्ट होते रहूंगा और धीरे धीरे बढ़ता रहूंगा, ऐसा नहीं है। बट या इट शुड गिव अस अ सोलेस कि हाँ, मैं थोड़ा भी अगर प्रोग्रेस करूंगा तो इट इज गोइंग टू बी, मुझे एडवांसमेंट जो है भक्ति में मिलने वाला है। बट वी शुड कीप इट इन माइंड कि डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे एंड आई हैव टू बिकम फोकस्ड। सो थैंक यू आशीष जी, हरे कृष्णा। आई थिंक हाँ, पूजा माता जी, या हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं सिर्फ ये समझना चाह रही थी कि भरत महाराज ने जो हिरण का रक्षा की और उसकी केयर की, तो वो सब तो हमारे, जब हमको इस रूप में लिया जन्म इंसान के रूप में, तो ये सब तो हमारे ड्यूटी नहीं है कि ये सब काम करना। किसी को ट्रबल में अगर कोई है तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और भक्ति तो वो साथ में कर ही रहे थे, भक्ति तो उन्होंने छोड़ ही दी थी। पर ये था कि अगर उनके सामने कोई है जिसको वो, मतलब शेर के सामने तो शेर खा ले, वो तो नहीं छोड़ सकते थे, उसको तो उन्हें प्रोटेक्ट करना उनकी ड्यूटी बनती है, उनका वो धर्म है। तो वो गलत सेंस में हुआ, मतलब। वेरी नाइस क्वेश्चन पूजा माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। तो इसका मतलब ये नहीं है हम लोग अगर भक्ति कर रहे हैं कि हम लोग अपनी नॉर्मल ड्यूटी छोड़ दें। नॉर्मल ड्यूटी तो करना ही है। जैसे हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कोई भूखा दिख गया तो ठीक है, हम लोग ऑटोमेटिकली उसको खाना खिला देते हैं या किसी को हेल्प कर देते हैं। लेकिन जड़ भरत महाराज के केस में क्या हो गया, उनको रक्षा करना चाहिए था। जब वो बच्चा जब हुआ तो इमीडिएटली उसको वहां से उठा के उसको कहीं पे रख के जा सकते थे। अभी राधा गोविंद महाराज यही बोलते हैं कि वो सारे जंगल में वो एक ही हिरण तो नहीं था, हिरण के बच्चे और कई थे, तो उनका रक्षा फिर कौन करेगा, या उनका रक्षा क्यों नहीं किया। लेकिन उनका जो आसक्ति था कि मैंने इसे बचाया है, इसके लिए मुझे इसका रक्षा करना है, दैट वाज रॉन्ग।
और वो रक्षा करते रहना है। मतलब ये इसमें ये भाव आ जाता है कि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। भगवान जो फैक्टर है वो फिर निकल जाता है कि भगवान रक्षा नहीं कर रहे, मैं रक्षा कर रहा हूँ, मैं कैसे इसको प्रोटेक्ट करूँ। तो ये जब आता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है फिर वो भटक जाते हैं। हम लोग भक्ति करते करते ये सब जो है कार्य हम लोग करते रह सकते हैं। हम लोग किसी की रक्षा कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को मत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर हम हेल्प करने लग जाएं तो हम भगवान की भक्ति छोड़ दें और साइड लाइन हो जाए और हम लोग बस उसी के पीछे निकल जाए। और बहुत से लोग यही करते हैं, उनको लगता है कि यही करना है हम लोग को। तो फिर क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज में ही लग जाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं बोलते हैं मानव सेवा माधव सेवा, यानी मानव का सेवा कर दो तो माधव का सेवा हो जाता है। ऐसा नहीं है, इट इज रॉन्ग। भगवान का सेवा करना है तो ऑटोमेटिकली माधव का सेवा हो जाएगा। जैसे पेड़ को अगर पानी डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सबका हो जाएगा। भगवान सबके हैं, रक्षक हैं, वो देखने वाले हैं। लेकिन ये सोचना कि मैं ही सब कुछ करूंगा, ये जो सोचना है और उसमें साइडलाइन हो जाना, दैट इज रॉन्ग। आई होप मैं सब एक्सप्लेन कर पाया। माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। So I think it should be Madhav Seva is Manav Seva. Right? yes. मानव सेवा इज माधव सेवा तो ऑटोमेटिकली। हाँ, उल्टा उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं होना No, चाहिए। no, but that's what I'm saying. Based on the discussion that we had right now, if we do Madhav Seva, then automatically it is ऑटोमेटिकली Manav मानव Seva. सेवा इज ऑटोमेटिकली डन, बट ऑटोमेटिकली काफी डन। काफी लोग उल्टा सोचते हैं ना, मानव सेवा यस, हाँ, करके हम माधव सेवा Madhav. करते हैं। या और इसीलिए फिर वो भटक जाते हैं ना, फिर भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। बस इसका पूजा करो, उसका पूजा करो, इसका देखरेख करो, वो उसी में लग जाते हैं और उसमें फिर दे गेट साइड लाइन। वो भगवान जो फैक्टर है वो उनकी लाइफ से निकल जाता है, जी जस्ट कीप डूइंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको पुण्य मिलता है। उन्होंने इतना सारा पुण्य कमाया तो वो पुण्य मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पुण्य दे गेट रीबर्थ अगेन, विच इज नॉट द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम लोगों को ये मनुष्य जन्म, ये जो साइकिल है 84 लाख स्पीशीज का, इसमें से निकलना है हम लोगों को। हरे कृष्णा। Thank you everybody. Thank you Anushka. Anushka has sent a message that she was, because of network issues, she was not able to listen properly. So she will hear the recording and yeah, it's good actually. हम लोग at least कुछ लोग जो हैं जो YouTube study कर रहे हैं, so that is very nice. Anyway, while live or by recordings, our study should go on. So thank you Anushka. Thank you everybody. Yes, Ashish ji. हरे कृष्णा प्रभु जी। या थैंक यू। हरे कृष्णा। सो हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो हम लोग Hare Krishna. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूजा जी। हरे कृष्णा वैजी माता जी। हरे कृष्णा अनुष्का।